ये 5th ही है ना? एक सेकेंड। हम्म ओके, कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन्स? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, एक बार ma'am. पढ़ लो इसको एक बारी। तो समवन कैन रीड इट आउट टू मी। अनु पढ़ोगे आप इसे, एक बारी पढ़ो। Yes, ma'am. Dyson Supersonic in India, a blue ocean approach. Market challenges. First, price sensitivity. The India market is known for its price sensitivity. Dyson Supersonic hair dryer, priced at around INR 30,000, entered the luxury segment, which is considerably smaller and less explored in India. Second, consumer awareness. There was a significant need to educate the market about the technological advancements and benefits of the supersonic, which justified its premium price compared to conventional hair dryers priced between INR 500 to INR 5,000. ठीक है, आगे। Next strategic approach, targeted marketing. Dyson targeted affluent consumers who appreciate luxury and innovative gadgets. Marketing campaigns were crafted to highlight the technological and health benefits such as reduced heat damage and enhanced hair protection, creating a new niche in personal care. Second, retail experience. The introduction of demo zones in high-end shopping malls and selected retail stores in major cities allowed customers to experience the product firsthand, differentiating Dyson's approach from the usual retail strategies for personal care appliances. Third, celebrity endorsements. Dyson leveraged endorsements from well-known Bollywood celebrities and top hairstylists, which helped establish trust and aspirational value, aligning with new consumer values rather than just competing on product features. Next, product adaptation. First, no major changes. The product maintained its global design and technological specifications, reinforcing its premium appeal and unique position in the market. Second, focus on health benefits. Dyson highlighted the hair dryer's ability to protect hair from extreme heat damage, resonating with the growing health consciousness in urban India, thus creating a new consideration factor in purchasing decisions. Next, market response. First, niche acceptance. The adoption was primarily within a niche segment, but it was well achieved by those who value advanced technology and brand prestige, establishing a new space in the personal care appliance market. Second, building brand presence. The launch significantly enhanced Dyson's premium brand presence in India, potentially paving the way for future product introductions that could expand this newly created market space. Right. Conclusion, Dyson's launch of the Supersonic in India exemplifies a blue ocean strategy by targeting a previously untapped segment of the market that prioritizes health, luxury, and technological innovation over price. This approach not only distinguishes Dyson from traditional competitors but also expands the market by altering consumer perceptions and expectations in the personal care appliance sector. ठीक है, अब देखो एग्जाम में इतनी बड़ी तो केस स्टडी नहीं आएगी आपकी, है ना? एंड बट जो क्रक्स होगा केस स्टडी का, वो किसी ना किसी एक, जो भी हमने यूनिट में जो भी पढ़ा है, इट विल बी पर्टेनिंग टू दैट। ठीक है, जैसे ये जो केस स्टडी है, इट रिवॉल्व्स ऑल अराउंड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। सो how did Dyson create a new market space with the supersonic hair dryer in India? Who would like to answer this? Would like to try? कि क्या किया ऐसा डायसन ने टू क्रिएट अ न्यू मार्केट स्पेस? कैसे किया उन्होंने? दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, by ma'am. देखो इस केस creating स्टडी में, awareness in the consumers. राइट, एंड गो ऑन। इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना मेन सेलिंग पॉइंट बताया कि वी आर ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, राइट? इन्होंने और कुछ बाकी जो, हाँ हाँ, Ma'am, protection from heat damage. राइट,
affluent clients, हम्म targeted affluent clients, ma'am. बट एक बात बताओ, इसमें तुम्हें कहीं ये भी लग रहा है डिफरेंशिएशन, नीश strategy focused? It is for people who want to have luxury products. It is not for everyone, right? So along with Blue Ocean, what they did, they also tried to enter into a very differentiation focused strategy. ठीक है? And please go on, please add. Okay, let's do the next question then. Ma'am, What role did consumer education play in Dyson's market strategy? Consumer education? So they ma'am, created can we a go back to demand that case study? by क्या कह रहे हो? You want to go back to the case study? One second. Yes, ma'am. आप एक काम करो, तो क्लिक कर लो पहले, क्वेश्चंस होने के बाद क्लिक कर लो, फिर केस स्टडी वाले पेज पे आई विल पुट इट. ठीक है? केस स्टडी वाला Ma'am, done. उधर जाए पेज पर. ओके, देखो इधर. मैम फर्स्ट क्वेश्चन मैम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि इन्होंने इनोवेशन यूज करा, डिजिटल मॉनिटर वगैरह. हाउ? और देखो एक और चीज है, आप ना इधर तो फिर भी एक लेंदी केस स्टडी है, वहां पर यू विल गेट द केसलेट. उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आएगी होगी, राइट? बट यू नीड टू बी क्रिएटिव, बट क्रिएटिव लेकिन थोड़ा इन दी इन द वे की टॉपिक से बहुत भटक जाना तुम लोग, है ना? एक तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करो, जो पढ़ा है, कॉस्ट लीडरशिप हो, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हो, ये सब वर्ड्स को आपको यूज करना होता है ना, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का तो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर तो है नहीं है ना? ओके, सो व्हाट रोल डिड कंज्यूमर एजुकेशन प्ले इन डाइसन्स मार्केट स्ट्रैटेजी? Ma'am, here it is written about the टेक्नोलॉजी. हाँ, go on. Yes. ma'am, here it is written about the consumer awareness that they need to educate the market about the technological advancement and benefits of the supersonic, which is justified its premium price compared to the conventional hair dryers priced between राइट. rupees देखो, जब 500 आप to किसी से 5,000. जब आप किसी से बहुत पैसे ले रहे हो ना, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो चीज 500 से 5,000 के बीच में आ जाती है, और अगर आप उसके 30,000 50,000 लोगे, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो डायसन ने कैसे जस्टिफाई करा है? हमने इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करी है, हमने ये, देखो ये करके आपके बालों को डैमेज नहीं होगा, ये यूज करके ये नहीं होगा. सो पीपल आर लाइक हाँ हाँ हाँ. अब जस्टिफाई हो रहा है कि इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं. तो कैसे किया इन्होंने? यही करके ना उन्हें एजुकेट किया कंज्यूमर को कि मैम देखो लोगों को आपको एक नहीं पता टैक्स है. हेवी, मैम एक टर्म देके कि टैक्स हेवी हमारा प्रोडक्ट है. राइट, टेक सेवी है. बोल कि हमने बहुत R&D करी है, ऐसे ये नहीं है कि हवा आई और हीटर लगा हुआ है, गर्म हवा फेंक रहा है, हो गया. नहीं, जैसे मैम ही ऑनलाइन नहीं. ट्यूटोरियल्स एक्सप्लेन करे हैं हेयर डैमेज की और सुपरसोनिक किस तरह से उसको प्रिवेंट करता है. प्रिवेंट करता है, करेक्ट. आपके एड्स भी देखोगे, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंडिया में? गर्ल्स इन द Deepika हाउस. Padukone. करेक्ट. Deepika दीपिका Padukone. पादुकोण. राइट. ठीक है. ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Okay. How effective were celebrity endorsements in influencing consumer perception and acceptance of Dyson Supersonic? ये celebrity endorsement से कुछ हुआ है इन्हें फायदा? Yes, ma'am, they created a desire among young and urban consumers. Right. And डायसन exactly. लुक मैम इससे ट्रस्टवर्दी भी लगा थोड़ा, एक्ट्रेसेस ने जैसे वो करा तो इस मारे. And luxury and quality. जैसे Ma'am, फिलिप्स का कौन करता है ऐड? फिलिप्स के ड्रायर का Alia Bhatt. आलिया भट्ट. तो ये लोग ऐसे ना, ऐसे मूवी स्टार्स को लेते हैं कि देखो अभी तो ये इन्फ्लुएंसर थिंग बहुत ज्यादा हो गई है, यूट्यूब से इन्फ्लुएंसर्स को दे प्रोडक्ट्स देते हैं. बट पहले अगर आप देखोगे, चाहे लक्स का सोप हो या कोई भी ब्रांड हो, इन एक्टर्स और एक्ट्रेस को दे यूज्ड टू हायर देम फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट्स, ब्रांड एम्बेसडर बनाते थे उनका, राइट? Excuse me, ma'am. हाँ हाँ, बोलो बोलो. Ma'am, can we also mention that why they take the personality, famous personality, because of the fan following of that Certainly. personality, isn't it, ma'am? सर्टेनली सब कुछ लिखना है भाई, लेकिन जो भी आपको थॉट्स है ना, उनको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना.
देखो एक हमें देखो कई बार ऐसा होता है हमें बहुत आता है बट जब लिखने की बारी आती है ना तब हमें समझ नहीं आता क्या चीज पहले लिखनी है किस तरह से लिखनी है कितनी डिटेल में लिखना है। तो आप ऐसे सोचो एग्जामिनर के लिए ना क्रिस्प कर दो चीजें पहले एक ऐसे कोई एक डायग्राम सा बना दो। फॉर एग्जांपल डायसन हमने लिख दिया उसमें केस स्टडी का नाम हमने कुछ ऐसे एरो वैरो बना दी कि जितना ज्यादा पिक्टोग्राफिक चीजें होती है ना वो इतने इजीली समझ में आती हैं है ना। बट yeah this you can always use multiple ways to answer, right? Then evaluate the potential long-term impact of Dyson's market entry strategy on the personal care appliances sector in India. बताओ potential long-term impact of Dyson's market मैम entry प्रीमियम strategy. सेगमेंट ग्रोथ हाँ and और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपटीशन। right and they have set new standards for product quality and innovation. आप देखोगे अभी मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा बट एक दो कंपनीज और भी अभी आ गई हैं जिनके ना सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं नॉट दिस नॉट दैट हाई इन प्राइस बट वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल वो ही चीज ऑफर कर रहे हैं जो डायसन ऑफर कर रहा है लाइक द टेक्नोलॉजी पार्ट राइट। तो इन्होंने देखो दे अब द मार्केट ना इन्होंने अपने मार्केट में ही मैम एक नोवा न्यू है नोवा। स्टैंडर्ड। नोवा। अच्छा ओके 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 एंड गो ऑन। मैम हायर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। राइट एंड और मैम इसमें प्रोफेशनल एडॉप्शन भी आ सकता है। अच्छा ये जो भी हमने जो सभी अभी 4-5 घंटे से जो हम पढ़ रहे हैं ना इसकी तो कोई चीजें यूज करो तुम। जैसे ब्लू ओशन कैसे है ये कि भाई इन्होंने न्यू मार्केट स्पेस बनाया ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कोई भी नहीं सोच रहा था कि भाई हेयर ड्रायर को भी ऐसा प्रीमियम कर देंगे इन्होंने तो एयर प्यूरिफायर ले आए वैक्यूम क्लीनर लेकर आ गए पहले वैक्यूम क्लीनर किसका आता था यूरेका फॉर्ब्स का। अभी दे हैव गॉट इनटू दिस एंड इट इज आल्सो डूइंग रियली वेल एयर प्यूरिफायर तो है ही इनके विच आर मैम लाइक रियली ब्लू गुड। हाँ ओशन हाँ ऐसे इन्होंने क्रिएट करा कि इन्होंने जब मार्केट में एंटर करा तो इनका कोई प्रीमियम कंपटीशन नहीं था। करेक्ट हाँ एग्जैक्टली तो इधर लिखना आप है ना कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और इस तरीके से ठीक है। और मैम इस तरह की कोई भी मैम डिफरेंट टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। हाँ राइट हाँ बोलो। Ma'am, nowadays people are getting very conscious about their hair that their hair shouldn't get damaged due to heat. तो उन्होंने हम्म ऐसे टेक्नोलॉजी लाइक मतलब दे डेवलप दे डेवलप द ट्रस्ट उन्होंने डेवलप किया कि मतलब आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे देन आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे मतलब यूज करके इफ अ क्लाइंट इज परचेजिंग देयर हम्म प्रोडक्ट मतलब वो ट्रस्ट है उनका कि नहीं मेरे हेयर डैमेज नहीं होंगे तो इस तरह करेक्ट से राइट सो देखो बेटा केस स्टडीज ऐसे ही आएंगे उधर तो केसलेट होंगे बट टू द पॉइंट लिखना एक तो है ना और जो भी हमने पढ़ा है नई नई चीजें जो जितनी स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं ट्राई टू यूज देम इन योर आंसर्स है ना सो इट विल मेक योर आंसर लुक मोर इट विल अपील मोर एंड इट विल मेक मोर सेंस। जब अभी आप लोग चलो ये तो एग्जाम की बात हो गई व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑल्सो ना तो वहां पर भी देखो क्या होता है थॉट्स सबको हैं पर आप वो थॉट्स को किस तरीके से आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो दिस विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड राइट। जो एमबीए कर रहे हो उसका फायदा यही होगा ना कि आप अपने थॉट्स को जो पहले बहुत ही haywire थे नाउ यू आर क्लस्टरिंग देम यू आर प्रेजेंटिंग देम इन अ मोर कॉन्साइज वे एंड इन अ मोर प्रेजेंटेबल वे ठीक है। तो जस्ट टेक अ क्यू फ्रॉम दिस एंड आंसर्स भी आप इस तरीके से ही लिखना। ओके देन do you want me to do another case study or we are good to go and we can end this class? मैम कैन वी डू वन मोर केस स्टडी हाँ भाई बाकी बताओ कर ले एक और। यस मैम। डन ठीक है डन ओके रीड दिस केस स्टडी। तो ये केस स्टडी पहले ये देखो एक बारी है ना एक सेकंड रुको हेलो Good afternoon. एक सेकंड गाइस मैं ये
आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। तो एक मिनट, कौन से हम लोग लास्ट स्लाइड पे थे ना? एक सेकेंड। वन सेकेंड। पहले ये एक एड दिख लेते हैं, ठीक है? दिख रहा है एवरीवन? गिव मी अ थम्स अप। इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है। ओके, सो यू टेल मी, बेवकूफ.com, ये जो इसके टी शर्ट्स आते हैं, इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? मैम जेनजी। Ma'am, young Gen Z, right? adults. Just quickly read this. मैम वीडियो शो हो रही है। अभी वीडियो दिख रहा है? ओके। नहीं मैम, अब नहीं दिख रहा। No, ma'am, case study is visible. हाँ, एक बार आप पढ़िए इसको। पढ़ा आप लोगों ने? I want someone to read it out, please. Shall I read? हाँ, please do. So, company overview. Bewakoof is an Indian online apparel brand founded in 2012. It has carved out a niche in the highly competitive Indian apparel market by targeting the youthful demographic with its unique, quirky designs and products. Strategy overview. Bewakoof employs a differentiation focused strategy where it concentrates on a specific segment of the market, youth aged between 16 and 34 years, and offers distinctive products that are different from mainstream brands. Implementation of strategy. Product differentiation. Bewakoof uses catchy phrases, localized content, and designs that resonate with young Indian consumers, cultural references, and contemporary issues. Engagement and branding. The brand heavily invests in social media marketing using platforms like Instagram, Facebook, and Twitter to interact directly with its audience, creating a strong brand persona that is youthful and humorous. Right. Customer-centric approach. Offers product at a moderate price point, balancing affordability with quality, and ensures a user-friendly shopping experience on its e-commerce platform. Limited edition releases. Regularly releases limited edition apparel to create urgency and maintain customer interest. Market impact, brand loyalty. By focusing on a young demographic and engaging with them on an emotional level, Bewakoof has fostered significant brand loyalty. Market growth. The distinctive approach has enabled Bewakoof to stand out in a crowded market, thus securing a substantial online presence and a growing customer base. Challenges. The brand faces the challenge of continuously innovating its product offerings to keep up with the dynamic preferences of the youth, scaling the business while maintaining a unique brand identity without diluting its youth-centric appeal. ठीक है, आप एक बार ये आई विल पुट बैक ऑन दिस, एक बार क्वेश्चंस एक बार आप प्लीज क्लिक कर लो। So would anyone like to throw some light कि क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, इस केस स्टडी में? What are they saying? So this case study is in मैम किस tandem तरह with, से उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस किया है। राइट, डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रैटेजी है ना, कि हाँ यंग यूथ उनको फोकस कर रहे हैं ये, बट उसमें भी
इट्स स्लाइटली मोर नीश, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पे ये लोग ग्राफिटी टी शर्ट्स बनाते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट? So, how sustainable is Bewakuf's differentiation focused strategy in the long term, given the fast changing fashion preferences of its target demographic? Please answer. क्या है इसमें, क्या कर रहे हैं ये, कैसे लॉन्ग टर्म में, कैसे दे विल बी एबल टू मैम सस्टेन? ये ट्रेंड, मैम सबसे पहले तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैम ट्रेंड चलता है उस हिसाब से ये सोशल मीडिया करेक्ट, को करेक्ट, मॉनिटर करके अपने कपड़े वो डिजाइन कर देते हैं। करेक्ट, ट्रेंड और प्रेफरेंसेस पे फोकस है इनका, देन मैम उसी अकॉर्डिंग इनोवेट डिजाइन बनाते हैं, फ्रेश राइट, कंटेंट में, और फ्रेश कंटेंट में हम अलग अलग यूथ को लेके या जो राइट, आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं मैम उनको लेके कंटेंट बनाते रहते हैं। राइट, सो यंग कंज्यूमर बेस है इनका, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये लोग बनाते रहते हैं अपना, है ना, एंड दे इन्वेस्ट अ लॉट इन द डिजाइन पार्ट एंड द मार्केटिंग ऑल्सो, है ना। और अभी किसमें अपने आप को वेरियस अदर कैटेगरीज में एक्सपैंड करना चाहते हैं, पर्सनल केयर में, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेज अ मोर ओल्डर डेमोग्राफिक्स ऑल्सो, ठीक है। What are the potential risks Bewakoof faces by concentrating heavily on a youth-centric marketing and product design? अगर is there any risk attached to this कि वो लोग सिर्फ youth-centric marketing कर रहे हैं और youth के लिए कपड़े बना रहे हैं? यस मैम। What is it? Risk क्या है, मैम जैसे कि? मैम इफ यूथ प्रेजेंस इज चेंज ड्रास्टिकली बेवकूफ में स्ट्रगल। ठीक है, and और मैम वन डेमोग्राफिक लिमिट पे लॉन्ग टर्म बिजनेस की स्टेबिलिटी पे भी इनको सफर करना पड़ सकता है। okay, and मैम जो फास्ट चेंजिंग फैशन और ट्रेंड है तो इनका वो भी लॉस हो सकता है, देखो बेटा, इनको एक बार और बार चीज होती है, इनोवेटिव होना पड़ेगा। देखो एक और चीज होती है, कैसे एक जो मैम लोग पहले आजकल ना T2C बिजनेसेस जैसे लोगों ने चला लिए हैं, जैसे अर्बन राइट, मंकी नाम की मैम एक वो है कंपनी, एक सोल्ड स्टोर नाम की है मैम, वो डायरेक्टली D2C कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी इन्हें सफर करना पड़े। ओके। अरे एक और चीज होती है, देखो होता क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम जो लोग बहुत ज्यादा फेसबुक यूज कर रहे थे ना, आजकल वो बिल्कुल फेसबुक यूज नहीं करते हैं, वो भी इंस्टाग्राम पे आ गए। अभी कुछ और नया आ जाएगा, उस पर चले जाएंगे। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज उम्र बढ़ रही है ना। पहले जो चीज बहुत अच्छी लग रही थी, एज वी ग्रो ओल्डर वी ग्रो आउट ऑफ इट। सिमिलरली अभी जो लोग हैं जो बेवकूफ के कपड़े पहन रहे हैं, आफ्टर अ पॉइंट दे विल नॉट, एंड इफ दे वांट कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो उनके साथ लॉन्ग टर्म पे रहें, तो धीरे धीरे उन्हें सिर्फ यूथ सेंट्रिक से भी थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा ना। दे हैव टू फोकस ऑन कि अच्छा ठीक है, अभी 35+ वाले लोगों के लिए भी कुछ एक नया लेके आ सकते हैं, है ना। ओके, how can Bewakoof expand its market reach without losing its brand sense that strongly appeals to the younger audience? Market reach कैसे expand कर सकते हैं? मैम अपने सब ब्रांड्स बना के, लाइक ओके, फुटवेयर में करेक्ट, या मेंस की या गर्ल्स की कोई एसेसरीज में। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन, ठीक है। अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करना है ना। एंड बोलो, पार्टनरशिप कर सकते हैं दूसरे ब्रांड्स के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ, आर्टिस्ट के साथ, है ना। यस मैम। मैम And प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को भी थोड़ा देख चेंज सकते हैं, करके। ओके। और नए रीजनेबल मार्केट्स में जाओ भाई। मैम ऑफलाइन मैम जाके, सिर्फ बोलो बोलो। मैम ऑफलाइन भी एक्सपेंशन कर सकते हैं ये अपना सिलेक्टिव एरियाज में, लाइक अगर जैसे नॉर्थ कैंपस के पास या किसी भी तो नॉर्थ उसके कैंपस पास ये में है करेंगे। इनका, है हम्म। इनकी, तो मैम इस है ना, तरह से मैम ये अगर एक्सपेंशन करेंगे ऑफलाइन एक्सपेंशन। स्टोर्स का, हाँ लाइक बेटा, जूडियो की तरह अगर ये करेंगे तो मे हाँ भी हो बेटा, सकता लेकिन है। आप समझो, देखो जूडियो किसका है? टाटा। मैम टाटा का। Tata is टाटा। it's someone, they are, they're rich people. They have lot of capital. They अभी have जैसे deep मॉल्स पे, pockets. लेकिन मैम मॉल्स में भी तो अपना ये कुछ खोल सकते हैं ना, जैसे मॉल्स हो गया या किसी यूथ इवेंट है, हाँ कोई बेटा, वो कॉलेज हाँ, फेस्टिवल है। यूथ इवेंट इज गुड, बट देखो आप एक और चीज ध्यान देना कि जब भी आप ऑफिस में कोई आइडिया दो ना, वो कैपिटल इंटेंसिव आइडिया नहीं होना चाहिए। कि अब देखो, मॉल में शॉप खोल सकते हैं, बट इट ऑल एड्स टू द कॉस्ट ना। तो हमें वो भी चीज थोड़ी फोकस करनी, क्योंकि इट्स अ न्यू ब्रांड।
they don't have a lot of deep pockets. So we can't compare Zudio and बेवकूफ, है ना? तो ये थोड़ी चीजें जो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है? Okay, then in what ways can Bewakoof leverage technology to enhance its customer engagement and product personalization to strengthen its competitive advantage? क्या कर सकते हैं to enhance its customer engagement? मैम AI based personalization. हाँ, and yes, correct. और बताओ. 3D, 5D prints. Right, and मैम customized product creation. हाँ, and social media integration, live feedback और influencers को साथ में लेके चलना, ज़्यादा organic marketing efforts करना, है ना? अभी सबसे इम्पोर्टेंट भाई AI यूज करो, ठीक है? गुड जॉब. तो अब तुम लोग एकदम एकदम प्रिपेयर्ड हो रणभूमि में उतरने के लिए, है ना? ओके देन, अब सब एकदम प्रिपेयर हो गए हो तुम लोग, ठीक है? So I would just end the class on this note. Excellence is not a destination, it's a continuous journey that never ends. And it should never end. अभी सेमेस्टर 3 हुआ है, सेमेस्टर 4 भी हो जाएगा, तुम लोग MBA भी कर लोगे, डिग्री भी मिल जाएगी, जहां अप्लाई करोगे उसका एक फोटोकॉपी निकाल के सबमिट भी कर दोगे सेल्फ टेस्ट करके. बट इट शुड नॉट एंड देयर, है ना? जो भी आसपास चल रहा है ना, बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर. अ नॉलेज इज अ सुपर पावर. और ये सुपर पावर ऐसी है, और ऐसे नहीं कि एक डोमेन का जो भी चल रहा है ना आसपास, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. एंड एज आई ऑलवेज से, कीप एनहांसिंग योर ब्रेन मेमोरी. मसल जो होता है ब्रेन का, उसको कीप एनहांसिंग इट. कैसे होता है? उसको यूज करके. काम से मत बचो कि कोई काम कर रहा है किसी को दे दिया, हम नहीं कर रहे, हम बच गए. नहीं, ये सब नहीं. ये बहुत ही, ये नहीं सिखाया है हमने स्ट्रैटेजी में, है ना? जब कोई काम आए, बी द फर्स्ट वन टू डू इट, नॉट फॉर एनीवन एल्स बट फॉर योरसेल्फ, ठीक है? So on this note, I would like to end the class, and I'm always an email away. You can always drop in an email if you have anything, and all the best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.